So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. And today we are having the fourth session over conditional sentences, if conditional, and we also talked about when and unless can also be added in place of if. Okay, so this was the table I showed you yesterday, and I told you to note down. So, this was something we covered yesterday. Till here, we had talked about all the things, right? In this particular presentation. So, when we are talking about first conditional, this is what we do, right? So, first conditional, if simple present plus will, if simple present plus imperative can also be done, I told you. And if should plus imperative, if simple present plus may, if simple present plus can. If you haven't watched yesterday's session, you can watch the recording. Okay. All right. So kindly put yourself on mute, everyone. So this thing we had covered. I hope you have taken a screenshot or you written it. Just take a screenshot. We are moving forward. Some exercises will be looking more in this. Write two sentences for each function. Okay. So here, if simple present plus will, please give me two examples, everyone. First one, give me two examples. If simple present plus will in English, just write it now. Simple present plus will. Give me two examples. Do fast. If you're able to give examples, I would find like you have understood the concepts, otherwise you are confused. I want two examples. You've given one example. Savitri ji has given one example. If I study, I'll pass. Atul ji, if you come, I'll go there. Vishnu ji, if I go to school, I will get gift. If I go to market, I will get vegetable. Nice. Vishnu ji, you've done well. But add comma in between these two clauses. If I go to school, comma, I will get gift. If I go to market, I will get vegetables. Savitri ji, if I miss the train, I will be sad. Nice. Everyone, give me two examples. Simple present plus will. If simple present plus will. Frame the sentences. Write your example. Sangam ji, there is a little mistake. If I study, I will get selected, not got. After will, we use first form, V1. Anamika ji, if I eat too much, I will get unhealthy. Hmm. If I work hard, I will win the race. Nice, Anamika ji. Deepa ji, if I study, I'll pass the exam. This is similar to Savitri ji's exam. Well, nice. Anyone else? Do it fast, everyone. Yesterday, I just told you that you don't want to understand the concept. How can I help in that case? Um, those who are able to answer, kindly answer this. Okay. Surjit ji, if I wake up early, I'll go to morning walk. Correct. If I speak loudly, teacher will be beaten me. No, 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 no. This is wrong. If I speak loudly, teacher will be beaten. हाँ लोग अब शिक्षक पीटे जाएंगे मुझसे मुझे नहीं शिक्षक पीटे जाएंगे मुझे विल बी बीटन नहीं कर सकते
इफ आई स्पीक लाउडली आई विल बी बीटन, ये कर सकते हो बाय टीचर, या फिर इफ आई स्पीक लाउडली टीचर विल बीट मी, सिंपल। ओके, टीचर विल बीट मी। संगम जी, इफ आई वर्क हार्ड आई विल सेलेक्ट एज, नो आई विल बी सिलेक्टेड एज। अब यहाँ पर आपने थोड़ा वो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आपने पकड़ लिया कि विल के बाद सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, पैसे में बनाना। अगर मैं कठिन परिश्रम करती हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, आई विल बी सिलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मीनिंग मालूम क्या होगा, आई विल सिलेक्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं सिलेक्ट करूंगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सिलेक्ट तो करेंगे नहीं, सिलेक्टेड होंगे, है ना। आई विल गेट सिलेक्टेड या फिर आई विल बी सिलेक्टेड, गेट भी सही है और बी भी सही है। निहारिका जी, इफ आई प्ले आई विल गुड इन गेम्स, नो आई विल डू गुड इन गेम्स, आई विल डू गुड या फिर आई विल बी गुड इन गेम्स, ऐसे। आई विल बी, या क्योंकि यहाँ पर आपने वर्ब नहीं लगाया है, ये एडजेक्टिव है गुड, तो ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई प्रैक्टिस मोर आई विल बी बेस्ट इन इंग्लिश, आई विल बी द बेस्ट। बेस्ट के साथ द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। इन इंग्लिश में ई कैपिटल। अतुल जी, इफ दिस ट्रेन रन्स फास्ट इट विल बी ऑन टाइम। बढ़िया। संगम जी, ओके ओके, ऑलराइट। So two examples I asked from you. This was simple present. The structure was simple. If Javed gets a good result, he will study medicine. If he fails his exam, he will not go abroad. Simple. Now give me two examples in this context. If plus subject, if plus simple present plus imperative. Three examples are given here. If you feel tired, drink a cup of tea. अगर आप थक जाएं तो कप ऑफ टी लीजिए। विष्णु जी has answered more. If I go to school, comma लगाइए विष्णु जी। If I go to school, comma, I will get gift. If I go to market, I will get vegetables. comma लगाइए market और सावित्री जी। ओके, मैं ऊपर वाले आंसर पढ़ रहा हूँ दोबारा। If you feel thirsty, take a glass of water. अनामिका जी ने इसमें आंसर किया है imperative. If you feel hungry, get food from kitchen. Nice, बढ़िया अनामिका जी, पहले आंसर किया अनामिका जी, क्लैप्स। बढ़िया, जल्दी से आगे बताइएगा। इम्परेटिव में करना है आप लोगों को, जैसे अनामिका जी ने किया है कि अगर आपको प्यास लगे तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, और अगर आपको भूख लगे तो आप किचन से खाना ले लीजिए, सिंपल सी बात है। और इम्परेटिव है। सर इम्परेटिव मीन्स इम्परेटिव मीन्स ऑर्डर बताना, रिक्वेस्ट करना या फिर इंस्ट्रक्शन देना। सिंपल, जैसे गो देयर, प्ले क्रिकेट, टॉक टू मी, है ना, ऐसे मुझसे बात करो, अपना काम करो, डू योर वर्क, है ना। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, इफ यू वांट गुड रिजल्ट, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ऐसे। तो ये जो डायरेक्ट शुरू होता है, व्हेन आई गिव कमांड स्टैंड अप, जब मैं कमांड दूं तो खड़े हो जाओ, ऐसे। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको विल वगैरह नहीं लगाना है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अप्लाइड कॉन्सेप्ट हमने लिया आपके, ठीक है। सारे जी ने कहा इफ यू गेट बोर्ड स्टडी फ्यू इंटरेस्टिंग बुक्स, बढ़िया। अतुल जी ने, इफ यू आर फीलिंग टायर्ड गेट अ नैप, इफ यू आर वर्दी प्रूव इट, बहुत बढ़िया, क्या बात। और बताइएगा। यहाँ पर इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, इसकी जगह पर इफ यू फील टायर्ड कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट बनाना हो तो इफ यू फील टायर्ड, क्योंकि ये जनरल कैसे होगा, ऐसे बोलेंगे ना, सेंस लगाइए कि अगर आप थका हुआ महसूस करो तो नैप ले लो, ऐसे देंगे ना। जनरल वे में तो एडवाइस देते हैं आप। इफ आई गिव रॉन्ग प्रेजेंटेशन ही विल स्कॉल्ड मी, अगर मैं गलत प्रेजेंटेशन देता हूँ ही विल स्कॉल्ड मी, नहीं नहीं। आप इसको इम्परेटिव मत बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं रॉन्ग प्रेजेंटेशन दूं तो मुझे डांटो, स्कॉल्ड मी, ही विल हटा दीजिए और ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए। इफ आई गिव गुड प्रेजेंटेशन अप्रिशिएट मी, सिंपल। ही नहीं और यू के सेंस में होता है, जब यू छिपा होता है इसमें, जैसे मैं बोला गो देयर तो मैं आपसे बोल रहा हूँ वहां जाओ, स्कॉल्ड में मुझे डांटो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट मी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पीक इंग्लिश आपसे बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, इंपरेटिव है।
जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है जनरली, ठीक है, और यू के सेंस में होता है, सेकंड पर्सन से बोलते हैं। Savitri ji has written another one. If you feel tired, get energetic drink. Energy drink बोलते हैं जनरली उसको। एनर्जेटिक, एनर्जी ड्रिंक बोली सिंपल से, कोई नाम नहीं। टेक एनर्जी ड्रिंक। Sujit ji, if you want more knowledge, start study. Hmm. Sangam ji, if you want to go to market, take umbrella because it's raining season, right? It's raining. बढ़िया। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, राइट? आप लोग आंसर कीजिए, जो लोग आंसर नहीं कर रहे, दोज वर नॉट आंसरिंग। निहारिका जी, नंदिनी जी, सुहानी जी, मिनी जी, concepts are not clear to you. Ananya ji, turn on the camera, answer everyone. How many of you have not taken all the class in this series? इस सीरीज में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली? निहारिका जी, if you feel sick, take medicines. If you get bored, listen song. बहुत बढ़िया। मैन जी, if you feel sleepy, you take a nap. नहीं, you हटा दीजिए, take a nap. How many of you haven't taken all the class in this series? If conditional sentence series. कितने लोगों ने सारी क्लासेस नहीं की? Let me know. अतुल जी, can you take all the classes because all the classes are very important. क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसा है और इसको आप पूरा कर लीजिए, देन दैट विल बी गुड फॉर योर एडमिशन। माय टू क्लासेस आर मिसिंग। ओके संगम, निहारिका जी, अनन्या जी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने क्लास नहीं ली है, क्योंकि देखो जिन्होंने ली है उनको तक समझ में नहीं आ रहा है। आई डेंट टेक ऑल द क्लास। मैंने जी, प्लीज टेक ऑल द क्लास। सुजीत जी, फर्स्ट क्लास मिसिंग। ओके, प्लीज कंप्लीट योर बैकलॉग बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, कंडीशनल, अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, राइट? चलिए, इम्परेटिव का बता दिया आपने। ये आपके एग्जाम्पल से पता चल रहा है जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनको थोड़ा समझ में आया है। शुड में देखेंगे, बताया था यस्टरडे आई टोल्ड यू। ये जनरली शुड का यूज क्या करते हैं? सजेशन के लिए करते हैं, बात याद रखिए। तो जैसे, इफ यू शुड रन इन टू पीटर, टेल हिम ही ओज मी लेटर्स, का मतलब बताया था कि अगर आपको पीटर मिले तो उसे बोलिएगा मुझे पत्र लिखे, है ना? ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ शुड के साथ, है ना? इफ और शुड और इम्परेटिव। अगर आप पीटर से मिलो, देखिए इसका अर्थ मिलना चाहिए, चाहिए का अर्थ में नहीं होगा, ठीक है? आगे वाला जो एग्जाम्पल होगा ना वो होगा। अच्छा, उससे एक कॉन्सेप्ट याद आया, इसको लिख लीजिएगा अभी तुरंत, क्योंकि याद आ गया तो बोनस पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, ऐसे बोलना। क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, तो इसकी इंग्लिश क्या करूंगा मैं? आप लोग कोशिश कीजिएगा बताने की, क्या मैं जाऊं। मिनी माय नेट, इट्स रीजन नेटवर्क इज स्लो। हमारा विल सी रिकॉर्डिंग, सी नहीं होगा, वॉच होगा। संगम जी, आई वॉच रिकॉर्डिंग। ओके, वॉच कर लिए बात है। अनामिका जी, इफ यू शुड आस्क मी, आई ट्राई टू हेल्प यू टू स्टे अवे फ्रॉम बेड। अगर आप मुझसे आप कहोगे, कहते हो, तो मैं आपको हेल्प करूंगी बेड से उठने में। इफ यू शुड टॉक टू राम, प्लीज कन्वे माई मैसेज टू कम होम एज सुन एज पॉसिबल। ये क्या है? Yes, I was reading the comment. अनामिका जी, एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, आपने यहाँ पर जो इम्परेटिव का जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इम्परेटिव दरअसल में शुरू होता है सीधे एक्शन वर्ड से, आपने क्या किया, आई ट्राई टू हेल्प कर दिया। इम्परेटिव ऐसा होता ही नहीं। ये वाला सही आपको लग रहा है, प्लीज कन्वे माई मैसेज टू कम होम एज सुन एज पॉसिबल। इफ यू शुड टॉक टू राम, प्लीज कन्वे माई मैसेज टू हिम। मैसेज, कन्वे माई मैसेज टू हिम करेंगे ना, उसे उसे पहुंचाना है। फॉर कमिंग होम या टू कम होम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा आप हिम लगा दें तो अच्छा हो। मैं आई।
क्या मैं जाऊं, मैं आई गो सही है, बट बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने सेंस के आधार पर किया, तो मैं क्या ही बोलूं उसका। सही है वो। बट चलिए, परमिशन हो गया। अम, चलिए, मैं ये काम कर लूं, आप वो नहीं, मैं मैं ये काम कर लूं, बन नहीं रहा यार, समझ कौन सा सुनाना चाह रहा हूँ। मैं ये काम कर लूं, आई शुड डू दिस वर्क। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से पहले, ठीक है, क्योंकि वो आपका परमिशन वाला था, इसलिए मे भी चल जाता है। कैन आई गो तो आप इनफॉर्मल बोलोगे, ठीक है, इनफॉर्मल फ्रेंड वगैरह तो कैन आई बोल सकते हैं। बट सही आंसर है आपका शुड आई गो। क्या मैं जाऊं, क्या मैं पढ़ूं, जनरली क्वेश्चन में बन जाएगा, है ना। तो क्या मैं पढ़ूं, शुड आई स्टडी, मतलब एक तरह से पढ़ूं, करूं, जाऊं, है ना। ओके, तो उसमें भी शुड आ जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ यू शुड रन इनटू पीटर, अगर तुम पीटर से मिलो, वैसे शुड का हिंदी क्या होती है, मिलना चाहिए, है ना, तो शुड का यूज कर लिया ये इफ वाले केस में। तो जैसे मैंने टैग क्वेश्चन बोले, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, क्या वह वहां जाए, तो क्या वह वहां जाए, शुड ही गो देयर। क्या वह वहां जाए, शुड ही गो देयर। चलो वहां चलूं, चलो वहां चलूं, चलो वहां चलूं, तो लेट्स गो देयर भी हो जाएगा। बट अगर मैं चलो हटा दूं, वहां चलूं, शुड बी गो देयर। हालांकि ये आपका परमिशन में भी और ऐसे रिक्वेस्ट में भी आ जाता है, तो वहां पर शैल भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यू शुड सी हिम गिव हिम दिस मैसेज। Uh, यस प्लीज। sir, sir, यस, here question mark will be apply or not? Should I व्हाई, go? व्हाई नॉट। Okay, sir. I was thinking it will be suitable or not. नो, सिंपली द कॉन्सेप्ट इज दैट, जस्ट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वहां जाऊँ, तो व्हाट डू आई मीन, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, और आई एम जस्ट सेइंग दैट मैं वहां जाऊँ, तो मैं बोलूंगा आई शुड गो, सिंपल। मैं वहां जाऊँ, आई शुड गो। हालांकि आई शुड गो भी बोलूंगा तो मैं परमिशन नहीं पूछ रहा, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि मैं किसी से एक बार श्योरिटी करवा रहा हूँ, राइट। आई एम जस्ट एंश्योरिंग दैट दैट पर्सन एग्रीज ऑन, तो एक क्वेश्चन ही। Okay, sir. Yes. तो इस तरह से भी शुड का यूज हो जाता है। और वैसे जनरल वे में क्या होता है, जनरल वे में पता होना चाहिए सबको, तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक। तो वो तो पता होना चाहिए सबको, शुड का यूज चाहिए का अर्थ में होता है। बट मैं बोल रहा था कि इस तरह से भी शुड का यूज कर लेते हैं, कर लूँ, पढ़ लूँ, देख लूँ, शुड आई सी दैट। जैसे कहीं आप गए और नॉर्मल वे में बात करनी है एक तरह से, तो आप वहां पे बोल सकते हैं शुड आई गो देयर, है ना, ऐसे। बट याद रखेंगे शुड वाला जो है ये नॉर्मल में जनरल टर्म है, ये आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एकदम फॉर्मल रिक्वेस्ट वगैरह, नॉर्मल, है ना, उस तरह से। अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो शैल भी कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं। ओके, और ऐसे बोलो तो तुम चले जाओ, जैसे कुछ होता है ना ऐसे मिला करके, तो तुम चले जाओ। या तो आप बोल सकते हैं यू गो, आप जो गाड़ी में से ये करते हैं ना, अच्छा, वेल यू गो देयर, ऐसे बोल देते हैं। तो आप उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं, भाई तुम्हें चले जाओ ना, यू शुड गो। समझिएगा थोड़ा सेंस के आधार पर ही, तुम चले जाओ, अच्छा, यू शुड गो, ओके, वेल यू शुड गो, ओके, आई वांट टू गो, यू शुड गो। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो आपको मिलेगा। और जैसे बोलना है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि उसे जाना चाहिए, अच्छा वो जाए, वो जाए, ही शुड गो, आई वांट टू गो। आप चाहे ऐसे बोल दो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, या फिर बोल दो वो जाए, ही शुड गो। समझ रहे हैं बात को, वो जाए, ही शुड गो, इसको लिख लीजिएगा, वो जाए। अच्छा, हम वो गाना गाए, वो गाना गाए। अब कैसे बोलेंगे, ये तो इम्परेटिव बना ही नहीं पाएंगे, है ना। ही प्ले, ऐसे आप जनरली क्या करते हैं, अच्छा ही सिंग अ सॉन्ग ऐसे बोलते हैं ना, बट वो तो फिर कॉमा लगाते हो फिर बोलते हो, है ना, ऐसे नहीं होता। वो वो खेले, या वो गाए, इसका बताइएगा, वो गाए कि इंग्लिश क्या बताइए। ही शुड सिंग, यस। तो इस केसेस में भी मैं कहना चाह रहा था कि बन जाता है, तो इस यस।
टेल मी। वो गाए, वो खेले। ओके। वो पढ़े। ठीक है। ऐसे बताओ, वो पढ़ें पढ़ें, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस देखिएगा। मैं चाह रहा हूँ आपने से कौन, वो गाना, उसे गाना चाहिए और वो गाए, दोनों बात एक ही है। सुरजीत जी, दोनों बात एक ही है, सेंस के आधार पे मैं ले रहा हूँ। चाहे उसे गाना चाहिए आ जाए या वो गाए। ठीक है। उसे गाना चाहिए, आप जनरली एम्फोसाइज कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो। वो गाए जनरल वे में, आप ऐसी बात कर रहे हो कि अरे वो कर ली, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ और, या फिर बोल रहे कि वो गाए, मैं नहीं गाऊंगा, वो गाए। ठीक है। थोड़ा सा कोरिलेट करके देखने का पता चला है कि एक्चुअली में आप उसको सजेस्ट ही कर रहे हैं एक तरह से। जैसे बोलते हैं ना कि भाई, जैसे सर ने बोला, तो कौन गाना गाएगा, तो जनरली हमारा होता था, सर, ही 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 विल सिंग, सर राहुल विल सिंग, सर राहुल इज सेइंग दैट ही विल सिंग। ऐसा होता था ना कि हम लोग खुद अपना नहीं बोलते थे, दूसरे के हाथ उठवा देते। तो सर बोलते थे कि भाई उसे गाना होगा तो उसे खुद हाथ उठा लेगा, तुम अपना बता। राइट। तो वहां पे क्या हो रहा है, सर मैं नहीं, ही शुड सिंग, वो गाए। ऐसे। ठीक है। मैंने पूछा था, वे, सॉरी, क्या बोला था, वो पढ़ें पढ़ें, ढा के ऊपर एक बिंदी लगा दें। इसका आप लोगों ने बताया नहीं। वो पढ़ें पढ़ें, बिंदी लग गई, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। आपने अभी ही शुड रीड किया था, शी शुड रीड किया था, दैट्स करेक्ट। उसको वो पढ़े के लिए था, मैंने कर दिया वो पढ़ें। सोचिए, समझिए, बताइए। अनामिका जी। यस, ग्रेट। समझ गए आप लोग, है ना। वो पढ़ें मतलब प्लूरल हो गया, दे शुड रीड। समझ में आया बात, समझ में आई बात, है ना। देखिए डिफरेंस है, आपका मन कर रहा होगा कि भाई लेट से क्यों नहीं कर लिया, हो सकता है कुछ और मन करे। आप मुझे बताइए कि आपने कुछ और लगा यहाँ पर, कुछ और भी ट्रांसलेशन हो तो बताइएगा जरा, क्योंकि आपका मन कर रहा होगा ना अलग अलग ट्रांसलेशन। लेट मी नो। आपको जैसे मैं पूछ रहा हूँ, वो पढ़े, ही शुड रीड या शी शुड बताया, रीड बताया आपने। और क्या लग रहा है आपको, और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या? अगर मैंने ना बताया होता तो आप कैसे करते? वो पढ़े, लेट मी नो, जल्दी से फटाफट। वो पढ़े, अगर मैंने आपको ना बताया होता तो आप कैसे करते? रीडिंग शुड बी डन बाई देम। अच्छा, इतना लंबा। अरे, ये तो पैसे वॉइस में कर दिया आपने। दे रीड ये करते हैं, वो पढ़े पढ़े, दे रीड करते हैं। जबकि दे रीड यहाँ पे गलत हो जाता है ना। दे रीड मतलब वे पढ़ते हैं, ऐसा हो जाता। दे स्टडी, अच्छा जी। वो पढ़े या वे पढ़े, कुछ भी हो। ही बी रीड, सावित्री जी। एक बात बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आप ला रहे हैं, ये तो आना ही नहीं चाहिए, इतनी क्लासेस ले चुके हो। बी के बाद अ, आपने थर्ड फॉर्म किस रूप में लगाया है ना। अब वो इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ पे ही और बी, ये तो मतलब मैच नहीं हो रहा। थोड़ा सोचिए इस वाले पे, ही बी रेड। अगर आप थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हैं या फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे हैं तब भी गलत। दे शुड स्टडीड, स्टडीड तो शुड के बाद कभी आता ही नहीं। दे स्टडीड, अच्छा वो पढ़ें, आपने इसको ऐसे ले लिया, उन्होंने पढ़ा, ऐसे ले लिया आपने। मतलब कुछ भी होता अगर नहीं बताया होता, मैंने गलती करी, मुझे पूछना चाहिए था आपको पहले, है ना, ऐसे। कोई नहीं। तो आप ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, शुड लगाएंगे। क्लियर, शुड। आप दोनों बातें समझ गए होंगे, सुरजीत जी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे चाहिए का अर्थ हो या पढ़ूं जाऊं खेलूं, है ना, इसका अर्थ हो, तो वहां पर आप शुड का यूज कर लेंगे। ठीक है। जनरल सजेशन ही होता है अगर मैं बात करूं। आप कह रहे हो कि यार वो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे आप थके हो मान, और आपके घर में दो लोग हैं, मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ। तो आपका मन नहीं कर रहा कुकिंग का, तो आपने कहा अच्छा तुम कुकिंग कर लो, यू शुड कुक, है ना। एंड वाइस वर्सा, आपकी वाइफ भी बोल सकती है नो नो नो, आई एम टायर्ड, यू शुड। तो ये एक मैं थोड़ा रिलेट करके बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। राइट। तो इस तरह से हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लेट मी नो फास्ट। मैं आगे बढ़ना, ये बोनस पॉइंट थे, याद आ गया था इसलिए, क्योंकि इससे जुड़ा है, देखिए यहाँ पे ये वही चीज कहना चाह रहे हैं। um, कि इफ यू शुड रन इनटू पीटर, अगर पीटर से मिले तो उससे कहना कि पत्थर लिए।
अच्छा, आप यहाँ पे अनामिका जी कंफ्यूज इसलिए होगा कि टेल हिम आप ही बोल मी अ लेटर, ऐसा तो देख लिया क्या, टैग भी बोल सकते हैं, टेल हिम टू राइट मी अ लेटर, ऐसे भी। ओके, इम्परेटिव ही लगाना है आगे। क्लियर। ओके, तो शुड के साथ कुछ एग्जांपल मैं भी बता देता हूँ, आप कोशिश करना लिखने की। ये थोड़ा एग्जांपल आप कंफ्यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम अ, उससे नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ तो मेरे बेटे को पैसे दे देना। इफ यू शुड गो टू स्कूल, गिव मनी टू माई सन। मान लो कोई पेरेंट बोल रहा है ऐसे ही। अम, अगर तुम ऑफिस में जाओ तो सर से ये कंप्लेन कर देना। इफ यू शुड गो इन टू ऑफिस, या गो टू द ऑफिस, ठीक है, गो टू द ऑफिस ज़्यादा बेटर है, टू लगेगा। गो टू द ऑफिस, टीचर क्या बोला था, टीचर से कंप्लेन कर देना। कंप्लेन अबाउट दिस, जो भी है प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, कंप्लेन अबाउट दिस टू प्रिंसिपल, ऐसे। और अगर अगर तुम अ, खाना पकाओ तो मेरे लिए अलग पकाना। इफ यू शुड कुक, कुक सेपरेट फॉर मी, या कुक सेपरेटली फॉर मी। यहाँ पे कुक सेपरेटली ही आएगा एडवर्ब में। अगर तुम खाना पकाओ, उसको लिखेंगे, अगर तुम खाना पकाओ, इफ यू शुड कुक, कुक सेपरेटली फॉर मी, या कुक फॉर मी सेपरेटली भी करेक्ट है ना, बाद में भी आ सकता है। अगर तुम खाना पकाओ, इफ यू शुड कुक, कुक सेपरेटली फॉर मी, या फिर कुक फॉर मी सेपरेटली, ऐसे। और भी बन जाएंगे। अगर तुम मार्केट जाओ तो 1 किलो बनाना ले आना। इफ यू शुड गो टू मार्केट, बाय 1 kg बनाना, या ब्रिंग 1 kg बनाना। वैसे बाय करते हैं इसलिए बाय लगा दी। इफ यू गो टू मार्केट, ब्रिंग 1 kg बनाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दरअसल मालूम क्या कर रहा है आप, शुड आपने आगे लगा दिया है तो ये सजेशन को दिखा रहा है, बनेगा जनरल सजेशन दे रहा है कि ये कर लेना वो कर लेना, सजेशन के रूप, राइट। वाई ऑफ थिंग्स आर क्लियर। इसका बताइएगा, इफ सिंपल प्रेजेंट और मेन। देखिए, ये वॉट एवर आई एम टीचिंग, प्लीज रिवाइज दिस, these all the things whatever I'm teaching, revise these all concepts, because I know, because I have seen this in me as well. If you are not revising, there will be, no use of learning this. You will be understanding nothing. Okay, so if you are not revising these concepts, because these are very important. अभी पिछले आपने तो कर लिए बिना रिवीजन के, भी तो थोड़े से इजी कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा मैंने प्रैक्टिस वगैरह कराई तो थोड़ा आपको समझ में भी आने लगा, या बहुत सारे लोगों को नहीं भी आया होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। थोड़ा लाइटली मत लीजिएगा इस टॉपिक को, सच में ये टॉपिक अच्छा भी है, और बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में यूज भी होता है, आपको फ्लुएंट बनाने में बहुत मदद करेगा। और इसका अगर आपने यूज करना सीख लिया तो मतलब हर जनरल होता है कुछ कंडीशंस में बात कर रहे हैं तो वहां पे कर लें। यहाँ पे है, द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज जस्ट पॉसिबिलिटी। मे का मतलब मैंने बताया था, शायद, या फिर कोई चीज होना, ऐसे। आज बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, है ना। अब इसमें करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने बादल देखा, है ना, और मैंने कहा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। इफ वी गो आउटसाइड, वी मे गेट वेट, है ना। इफ वी गो आउटसाइड, वी मे गेट वेट। अगर हम बाहर जाएंगे तो हम भीग जाएंगे। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखाई तो मे का यूज कर लिए। और हालांकि मे का यूज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपको फर्स्ट पीपीटी दिखाई, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया। तो आप लिखिए जरा, मे के साथ एग्जाम्पल दीजिए, पहले सिंपल प्रेजेंट आएगा, उसके बाद आपका मे वाला है, एक नहीं दो एग्जाम्पल, ठीक है। अनामिका जी, इफ आई डोंट हेल्प हर, शी मे फेस लॉस। नाइस। इफ ही डजंट कम, ही मे फेल द एग्जाम। अगर यहाँ नहीं आता तो पढ़ा रहे हैं इस तरह से। इफ ही शुड नॉट रिवाइज द टॉपिक, इट disappears, disappears। he should not, मतलब मैं समझा नहीं ये, बिल्कुल ही। अच्छा, आपने जब क्वेश्चन किया है, इज इट करेक्ट, नहीं, यहाँ पर कैसे आप बात कर रहे हैं कि मतलब अगर वो टॉपिक रिवाइज नहीं
करेगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा या वो भूल जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। तो इसको शुड के साथ क्यों कर रहे हैं? ये तो नॉर्मल वाला हो गया। तो इधर प्रेजेंट लगाइए और उधर फ्यूचर में जाइए ना। इफ वी शुड क्यों लगा रहे हैं? इफ वी डू नॉट रिवाइज द टॉपिक्स, इट मे डिसअपियर भी कर सकते हैं, तो ये संभावना दिखा रहे हैं। इट मे डिसअपियर, अगर आप बिल्कुल बोलना चाह रहे थे इट विल डिसअपियर, सिंपल। इफ आई नॉट लर्न इंग्लिश, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश करेंगे। आई कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट, यहाँ मे का यूज कर रहे थे, भाई कैन नॉट सही है बट मे का मैं चाह रहा था, आप कहेंगे। इफ वी गेट वेट इन रेन वी मे इल। सावित्री जी, मे के बाद डायरेक्ट इल कैसे आ जाएगा? आफ्टर मे हाउ कैन यू यूज इल? मे के बाद तो वर्ब आता है ना, और यहाँ पे वर्ब तो है नहीं। तो मे के बीच में और मे और इल के बीच में कुछ ऐसा लगाइए। कंडीशन वाला पढ़ाया था मैंने। जैसे आपने वी गेट लगाया है वैसे मे गेट इल नहीं कर सकते, गेट सिक या गेट इल। निहारिका जी, इफ यू विश, इफ यू फिनिश योर वर्क यू मे टेक दिस। बहुत बढ़िया। अगर आप काम फिनिश कर लेते तो ये ले लेंगे, आप ले सकते हैं। मे बी इल, हाँ मे बी इल बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जरूरी है लगाना, है ना। मे बी लगा सकते हैं, गेट भी लगा सकते हैं, बी बहुत बढ़िया आप लगाया आपने। इफ यू नीड एनी हेल्प यू मे यूज माई नोट्स। बहुत बढ़िया निहारिका जी, दोनों आपके सही है। इफ इट रेन्स वी मे कैंसिल द ट्रिप। बहुत सही बंदे, समझ पा रहे हैं आप लोग। दो दो एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो आपने कहीं ढूंढ लेंगे 10 दिन। सुहानी जी, थोड़ा आप देखिएगा प्रिपेयर सेशंस को, आपको नहीं आ रहा है। सुहानी जी, अनन्या जी आर यू देयर? अनन्या जी, मिनी जी, यू आर ऑल्सो नॉट आंसरिंग। इफ सी कॉल्स आई मे आंसर, अगर वो मुझे कॉल करती है तो मैं आंसर करूँ। अनन्या जी, यू आर नॉट आंसरिंग, राइट योर रीजन। मिनी जी, सुहानी जी, अनन्या जी, those who are not those who are not writing answer, just write your reason why you are unable to write, unable to catch the concept. Concept is not clear, right? I'm writing in note, नोट में लिखने कभी कभी तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में दिख जाएगी थोड़ा बहुत। ओके, appear in comment section as well so that I can see that if the concepts are being clear or not. This will help me to answer. इफ यू ईट फास्ट फूड यू मे सफर फ्रॉम स्टोमक एक। बहुत बढ़िया। स्टोमक एक जो है ना, ये थोड़ा पास में कीजिए, क्योंकि स्टोमक एक अपने आप में ही पेट दर्द को बोलते हैं। जैसे हेडक होता है ना, वैसे स्टोमक एक, तो ये अलग अलग ना करके पास में कीजिए। इफ आई गो टू बाथ इन द रिवर आई मे ड्रॉन। ना जी ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ लग रहा है इसमें। इफ इफ आई गो टू टेक बाथ, या इफ आई गो टू बाथ में बी ए टी एच ई लगा दिए तो हो जाएगा वर्ब, ये आपने नाउन यूज किया है। इफ आई गो टू टेक बाथ कर सकते हैं इन द रिवर, आई मे आई मे ड्राउन, आई मे गेट ड्राउन कीजिए, डूब जाऊंगा ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप, डूब जाऊंगा। या आई मे बी ड्राउन कीजिए, बी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं ना, तो गेट लगाइए या फिर बी लगाइए। इफ वी नॉट ईट प्रॉपरली, इफ वी डू नॉट होगा संगम जी, वी मे बी वीक। डू नॉट कीजिए, स्टमक है, हाँ बढ़िया। इफ आई गो टू